Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a tube closed at one end has a uniform area of cross section. The tube contains some sand so that the tube floats upright in liquid as shown in figure. When the tube is at rest, the depth d of immersion of the base of tube is 16 centimeter. The tube is displaced vertically, then released. The variation with time t of the depth d of base of the tube is shown in figure. So first part में हमें find करना है, we need to calculate the vertical speed of the tube at a point where the depth d is 16.2 centimeter. Secondly, we have to state one other depth d where the speed will be equals to the calculated in 1. So to understand this question, we need to understand about the key concept of equation of SHM. So जब equation of SHM की हम बात करते हैं, so there are three equation that is important to us for particle to be in SHM. First is the displacement equation. So उसको हम लिखते हैं a sin x equals to a sin omega t plus phi. If the SHM particle is doing along the vertical along the horizontal direction, let's say this is the track on which the particle is doing SHM. So x is equals to 0. ये हमारी mean position होगी, right? And extreme position will be on the left side and on the right side. X equals to plus a and x equals to minus a. So mean position के about जो है particle between plus a and minus a, it will be oscillating. यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव इज नोन एज द फेज एंड फाइव को हम कहते हैं इनिशियल फेज. सो ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सेकेंडली वी नीड टू अंडरस्टैंड जब भी पार्टिकल मूव करेगा, so it possesses velocity. So velocity of the particle performing SHM, इसका एक्सप्रेशन दिया जाता है v equals to omega under root a square minus of x square. ठीक है. Thirdly, we need to understand about the acceleration equation of the particle performing SHM, which is given by the expression minus of omega square into x. ठीक है. ये जो third equation है, it is also the necessary condition for particle to perform SHM. So that is what the thing we need to keep in mind. From the graph, from this we can generalize the thing. Omega, that is v की अगर हम बात करें, so velocity at extreme position it becomes 0, क्योंकि हम देख सकते हैं जब x की वैल्यू को हम a सब्सटीट्यूट करेंगे तो velocity 0 आ रही है. And when x को जब हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, that is when the particle is at mean position, so velocity will become maximum. और जब velocity maximum हो जाएगी तो there will be no change in velocity further, so we can say acceleration in that situation will be 0. And in that case we can say acceleration जो होगा वो maximum होगा at extreme position, right? क्योंकि वहाँ पे we can see कि x की वैल्यू a हो जाएगी and we can substitute accordingly, we can get the values. अब यहाँ पे जो x है, that is we need to be careful. यहाँ पे जो velocity का expression हमने x लिखा, it is a displacement of the particle from mean position. That is what the thing we need to keep in mind over here. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है वो ग्राफ के जरिए हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट. सो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन है. लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस. कुछ इस तरीके का ग्राफ गिवन है. यहाँ पे जो है ये हमें 16 गिवन है, यानी कि ये x इज इक्वल y इक्वल्स टू 16 पे ये मीन पोजीशन है पार्टिकल की. दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, और टू बी प्रिसाइज इट इज 16 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसका एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, सो एम्पलीट्यूड विल बी एट 16.5. हम ग्राफ से देख सकते हैं कि एक जो यूनिट है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट, और वी कैन से ये जो एक बॉक्स है इस ग्राफ का, इसको हम 1 यूनिट कह रहे हैं. 1 यूनिट रिप्रेजेंट 0.25 सेंटीमीटर along y-axis and 0.25 second along x-axis. So that is what the thing we need to keep in mind. So ये along y है. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बॉक्सेस कवर हो रहे हैं टू गेट द एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या मिल रहा है हमको, 16.5 सॉरी 0.5 मिलेगा जस्ट, प्लस 0.5 ऊपर प्लस 0.5 नीचे, माइनस 0.5 नीचे. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि हमें एम्पलीट्यूड तो पता चल गया है. हमें जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट वर्टिकल स्पीड जब के डेप्थ d कितनी हो, 16.2 हो, यानी कि पार्टिकल कुछ यहाँ पे हो 16.2 बेसिकली, राइट. सो 16.2 पे पार्टिकल यहाँ होगा. सो दिस ये जो वैल्यू होगी x की, ये क्या हो जाएगी 0.2 मीटर सेंटीमीटर सॉरी. ठीक है. तो x हमें 0.2 सेंटीमीटर दिया. इस मोमेंट पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास a भी है, हमारे पास x है, हमें ओमेगा निकालना होगा पहले. सो ओमेगा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ओमेगा निकालने के लिए वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ वी कैन से, अगर हमें t मिल जाता है
टाइम पीरियड मिल जाए तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। टाइम पीरियड भी अगर हम ध्यान से देखें सो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए वी कैन सी के ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ तक। सो इट विल बी अप्रोक्सीमेट वी कैन से 0.525 will be 0.5 0.75 0.75 से थोड़ा ज़्यादा मीन्स 0.8 we are considering. So time period from the graph we can calculate it as to be 0.8 seconds. So time period हमें मिल चुका है. So time period के जरिए we can have the value of omega. Omega को क्या लिख सकते हैं, 2 pi by t, that is 2 pi by 0.8 यानी के pi by पाई बाय 0.4, 0.4 का मतलब होता है 4/10 यानी कि 2/5, तो 5/2 2.5 पाई बेसिकली आ रहा है, ये 2.5 पाई रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ ओमेगा वी हैव कैलकुलेटेड. अब जस्ट हमें वैल्यूज रखनी है एंड वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ टी वी सॉरी. सो वी हो जाएगा हमारे पास 2.5 पाई, 3.14 है पाई की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अगर हम करें तो 0.5 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर मीन्स 0.2 का स्क्वायर. सो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आएगी हमारे पास 3.61 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वी आर गेटिंग द वर्टिकल स्पीड ऑफ द ट्यूब व्हेन द डेप्थ इज 16.2 सेंटीमीटर. सो ये तो बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की. सेकेंड में हमसे पूछा जा रहा है स्टेट वन अदर डेप्थ डी वेयर द स्पीड विल बी इक्वल्स टू द कैलकुलेटेड वैल्यू. यानी कि इन दिस सेक्शन हमें ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. सो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन से कि हमें सेम स्पीड वाला चाहिए कि किस डेप्थ पे होना चाहिए. यानी कि मीन्स अभी तो 16.2 पे था, तो और कौन सी डेप्थ पे ये वैल्यू सेम आएगी. सो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ वी कैन सी के क्योंकि हमें पता है कि लेट्स से ये जो कंडीशन है यहाँ पे, अभी ये जो हमने प्लॉटिंग की है यहाँ पे, सो ये 16 है. सो इसके नीचे एक पॉइंट और ऐसा होगा 15.8 डिस्टेंस पे, ये 16 है यानी कि 0.2 पे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे, ये पॉइंट जो भी होगा लेट्स से 1 पॉइंट, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट होगा, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सेम है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वी कैन से वेलोसिटी विल आल्सो बी द सेम. सो यहाँ पे वी कैन सी देयरफॉर एट अ डेप्थ ऑफ 15.8 सेंटीमीटर वेलोसिटी जो होगी वो सेम आएगी. हम चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके. सो वी कैन सी के मीन पोजीशन से इसका भी जो डिस्टेंस होगा दैट इज 0.2 का, वो भी हम देख सकते हैं कि वो 0.2 ही है, राइट. सो इन दैट सेंस वी कैन से कि जस्ट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द डेप्थ. सो डेप्थ विल बी 15.8 सेंटीमीटर, राइट. सो यहाँ से अब हमें x की अगर वैल्यू चाहिए होगी तो वो अभी भी 0.2 ही होगी, क्योंकि हमें देखना है कि वी कैन सी के x जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, दैट इज 16 minus 15.8 will be 0.2 only. So this is the answer to the second part of the question. I hope you understood the solution. All the best.